very new topic and very new unit from your UGC NET syllabus. This is Unit 10, very last unit we are now on. We have already completed our all units 1 to 9, and those who have joined right now, they can complete their syllabus of this UGC NET from all the playlist given into this channel. You can go and visit all the playlist. I have made separate playlist for every unit, unit 2, unit 3, unit 4 likewise. But unit 1 की playlist के लिए you have to go to my another channel, that is Learn with Nishman, and for that I am also providing you the link on the top of my other channel. Go and watch this unit 1 playlist there, and rest of the playlists are available in the same channel. Now coming to this unit 10, recently we completed unit 9, and the very last topic that we completed was about GST. So those who have not watched even the very last session, on the top providing you the very last session from unit 9 where we concluded what actually GST is all about. This unit 10, starting with the very first topic, is what is tax. I hope you all are well aware with this term tax. We pay certain monetary consideration to the central authorities, to state authorities. One of the kind is income tax that everybody pays, everybody applies for it. So income tax is one of the kind, and मोरोवर हम इनकम टैक्स के बारे में ही डिटेल में इसके बाद यूनिट 10 में पढ़ने वाले हैं. बट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज यू शुड ऑल वेल अवेयर विद दिस टर्म टैक्स. कहाँ से ये टर्म आई, इस टैक्स मीनिंग, एक्चुअली इस टर्म का मीनिंग ही क्या है, वाई वी ऑल हैव टू पे दिस टैक्स, व्हाट आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स. जब एक टैक्स इम्पोज किया जाता है, ये एक टैक्स रेट डिसाइड किया जाता है, तो वो टैक्स रेट किन किन प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस एक अथॉरिटी को ध्यान में रखनी चाहिए एक टैक्स को डिसाइड करते वक्त, हम वो देखेंगे. एंड वी विल ऑल्सो सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स वी हैव इन इंडिया. Different kinds of tax basically kitni categories mein divided hai. So I hope you well aware with this term. Let's begin this session. This is our official mail address and this is our contact number. Those who want to reach to us, they can send their emails or they can send their messages direct on this number, and we are there for you. We will solve all your doubts. So basically tax क्या है, ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है, एक ऐसी ड्यूटी है ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री कि उन्हें अपने पर्सनल सेविंग्स से, अपने पर्सनल प्रॉफिट से कुछ पार्ट ऑफ मनी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. लाइक ट्रांसपोर्ट, लाइक रोड्स वी आर यूजिंग. हम देखते हैं ना, व्हेन वी ट्रेवल ऑन अ रोड तो कितने सारे टोल टैक्स होते हैं, हम टोल टैक्स पे करते हैं. Why? Because we are using that service of transportation. Right? Why? Same way we have different taxes. So let's begin this term. Tax can be broadly defined as a fee charged by any government. ये एक तरीके की फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है. किस लिए चार्ज करती है? लाइक आप कोई एक्टिविटी में, लाइक बिजनेस कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो. वी जस्ट completed this GST of goods and services पर जो अप्लाई होता है. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो आपको GST पे करना पड़ेगा. सेम वे इनकम के ऊपर लगता है. इफ़ आप कोई इनकम कमा रहे हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करो, बिकॉज यू आर यूजिंग देयर सर्विसेज, यू आर ऑलरेडी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू सर्टेन privileges. So tax is a kind of fee, and it is the dues to be paid for the privileges for the membership in any organized society. If you are living in a society and you are using certain kind of benefits and you are enjoying those benefits, then there is a duty on you that you have to pay, or you have to give certain dues to the authority. Taxes are the payments made for the services government provide to the people. टैक्सेस एक ऐसा पार्ट है हमारे यू कैन से लाइबिलिटीज़ का, जो हमें पे करना होता है, एंड वी हैव टू पे इट. हम इससे बच नहीं सकते. अगर हमारे पास कुछ इनकम है तो हमें वो पे करना ही होगा टू द गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग दोज सर्विसेज डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल मे नॉट कम्प्लीटली एग्री टू दीज सर्विसेज. ओके, मैनी पीपल कैन से कि हम तो ये यूज़ ही नहीं करते, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें ये दो ही ना, हमें रोड्स चाहिए ही नहीं, हमें फ्री वाटर मत दो. सो इट डजंट मीन you are the part of society. Whether you are using those services or not, you have to pay a tax. This is the compulsory liability on you. Now we will see what are the different categories of tax we have.
कैटेगराइजेशन ऑफ टैक्स, टैक्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इन मेजरली वी विल सी विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री. सो इन आवर कंट्री वी हैव डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग आप क्लियरली समझ गए होगे. डायरेक्ट मीन्स व्हेन इट इज पेड directly, when it is received directly from the taxpayer. So if any tax is levied directly on the wealth of the person, like उसकी इनकम पर आप डायरेक्ट इम्पोज कर रहे हो टैक्स, तो ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है. एंड दिस टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय एनी पर्सन कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम समबडी एल्स. ये ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर टैक्स है मेरी इनकम पर लगा है तो मैं ये टैक्स किसी और दूसरे पर्सन की इनकम पर शिफ्ट कर दूं. ऐसा नहीं है. जो मेरी इनकम है, मेरी इनकम से ही मुझे टैक्स पे करना होगा. एंड सिमिलरली द अदर पर्सन, अगर उनकी जितनी इनकम है उनको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उतना टैक्स पे करना होगा. दिस कैन नॉट बी शिफ्टेड. That is, the burden of direct tax cannot be shifted. Like income tax is the perfect example of direct tax. If आपके MCQs में आता है, क्वेश्चन में आता है, इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ लेता है कि वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनकम टैक्स. क्योंकि वो इनकम आपके द्वारा ही अर्न की गई है, आपके नाम पर वो सैलरी आई है, आपके नाम की वो इनकम है, तो टैक्स भी आप ही पे करोगे. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स completely opposite to it. This tax levied on the price of any goods or services, और इसको हम indirect tax बोलेंगे. One of the famous example that we just completed in unit 9 is GST. Those who want to understand what this GST is about, all about GST, on the top I am providing you the link of the very first session where I give you starting information, basic information of GST. तो इस लिंक पर जाइए, समझिए इस सेशन को. तो इनडायरेक्ट टैक्स के हमारे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कस्टम ड्यूटी, जीएसटी. सो इन दिस केस द पर्सन हु पेज द टैक्स पासिस ऑन द इंसिडेंस टू द अनदर पर्सन. यहाँ पर सपोज कीजिए मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स पे किया है वो इस टैक्स को प्लस करके उस प्रोडक्ट में ऐड करके कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है. सपोज कीजिए उन्होंने मैन्युफैक्चर किया कोई टेबल, टेबल पर टैक्स लगा, टेबल्स का पूरा जो वी कैन से जो भी ऑर्डर था उस पर 2% जीएसटी लगा. तो जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर होंगे वो थोड़ी टेबल की अब कॉस्ट कस्टमर के लिए बढ़ा देंगे ताकि उनको अपना टैक्स रिकवर करना है उनसे. सो दिस कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन. वन पर्सन कैन गेट बैक हिज ऑल you can say fees from the another one. Okay, then coming to the third part of today's session is, let's see what are those basic principles for a good tax system. एक कंट्री में अगर एक टैक्स सिस्टम हमें देखना है और उस टैक्स सिस्टम को वी हैव टू मेक इन अ गुड वे, देन व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स, व्हाट आर दोज रूल्स, या बेसिक थिंग्स दैट वन मस्ट कीप इन माइंड while framing that tax system. So Adam Smith offered 4 important principles for basic, or we can say 4 important rules which should be taken into account while you are planning for a tax system. टैक्स प्लानिंग के टाइम पर ये ध्यान रखना होगा. द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल यू कैन सी इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी मीन्स every person should pay tax to the government according to his ability to pay. अब एक पर्सन की सपोज कीजिए इनकम पर ईयर 5 लाख हो रही है और एक पर्सन की इनकम पर ईयर 20 लाख हो रही है. यू कैन नॉट क्लेम द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम बोथ द पर्सन. ही इज अर्निंग मोर देन दिस वन. सो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं चलेगी, यहाँ पर इक्विटी चलेगी. आप उनकी इनकम के हिसाब से उतनी परसेंटेज मांगिए और इनकी इनकम के हिसाब से उतनी परसेंटेज मांगिए. शायद इनकी इनकम, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स आपको 5% पे करना है, तो इनकी 5 लाख का 5% कम होगा और 20 लाख का 5% ज़्यादा होगा. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी मीन्स श्योरिटी. जो टैक्स है, जो टैक्स एक इंडिविजुअल पे कर रहा है, शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी. इट शुड बी सर्टेन. उसको पता होना चाहिए मुझे इतनी अमाउंट पे करनी है. ये नहीं है कि उसको पहले कुछ और बताया जा रहा है, जब पे करने का टाइम आया तो आप उससे एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हो. अमाउंट जो भी पे करनी है, इट शुड बी सर्टेन. इट शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द टैक्स पेयर इन एडवांस. ही शुड नो एवरीथिंग इन एडवांस कि अगर मेरी इतनी इनकम हुई तो मुझे इतना पे करना ही होगा. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस. Principle of convenience states that a convenient mode and timing of the tax payment should be set for the taxpayers. क्या मोड रहेगा, किस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना है, पहले कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, आपको टैक्स कब किस टाइम पर पे करना है. ये नहीं है कि उनको टाइम का ही ना पता हो, टाइमिंग पता होनी चाहिए. एट द एंड ऑफ द ईयर किस टाइम पर
पे करना है, और अगर ये टाइम क्रॉस हो गया तो आप पर फाइन लग सकता है। तो ये सब चीज़ें एक पर्सन को पता होनी चाहिए। उसके लिए मोड ऑफ पेमेंट कन्वीनियंटली बनाना है, सॉफ्टली एंड स्विफ्टली प्रोसेस देना है। देन लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी सेज दैट जो ये टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द टैक्स पेयर्स, इट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाना चाहिए, गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए, ताकि उस पैसे से इकोनॉमी बूस्टअप हो, उस पैसे से हम इकोनॉमी को डेवलप करें, टू ब्रिंग इकोनॉमी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। All right, so this is all about the tax. I hope you understood now this term. What are the major things that should be kept in mind while planning a tax? Categorization of tax we did. In the next session I'll come with the difference of direct and indirect tax. हम डिटेल में दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे. Till then, keep watching, keep sharing, maintain continuity. This is the very first session of Unit 10. So अभी से ही आप मेरे साथ अपनी continuity बना के चलिए, ताकि Unit 10 को आप टिप्स पर कर सकें. Have a nice day. Thank you.